Now over to you, Aditi ma'am. She is one of the dynamic personality. बहुत सारे अच्छी तरह से she is law की expert, and I am very much impressed. Also, I am using her lectures right now for studying my CS final. तो आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत ही उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे. So welcome ma'am, and over to you now. Thank you so much, Rishikesh ji. Hello guys, good morning. How are you doing? It's been a long time since we met. बहुत time बाद आज हम मिल रहे हैं. So there's one thing I want to start my whole session with. They say if you talk about it, it's a dream. If you talk about it, it's a dream. If you envision it, it's possible. But when you schedule it, it's real. So without a schedule, nothing is going to happen. So today's session that we've kept it only for your schedule. But when I was going to come for this session, I got some messages from many of you, and they had this query that, ma'am, hello everybody. Everybody's messaging. Hello, hi, how are you? Well, very well doing. Okay, so one message that I got from a lot of people is like, ma'am, attempt है वो तो ठीक है. See, जब तक ICAI का notification नहीं आया था, exams are getting cancelled, तब तक there were different set of problems. Once the notification has come, now there are different set of problems. ठीक है. So I just want you to understand, there are many students who message me, ma'am, it's not about studying, it's about studying in this माहौल. ठीक है. हम ये माहौल में पढ़े कैसे? Okay, so for that, I would just like to explain you certain things. Just give me a moment. Okay, so can you share my screen? Can you see my screen? Rishikesh sir, is my screen visible? Yes ma'am, it's visible. Yeah, I think it's visible now. जब तक अच्छा मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही होगी. Okay, sorry. I don't know. I should get to hear you. Hello. Anyways, I think it's now working, as I can see in the video. Guys, now please listen to me carefully. There's something that I need to tell you. I'll tell you the ABC analysis. I'll tell you how to study. I'll tell you everything that you need today. मैम अमेंडमेंट्स कितने आएंगे, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सबसे पहले अबाउट दिस कोविड थिंग. ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू हैंडल योर प्रोफेशनल एग्जाम्स इन द सिचुएशन ऑफ कोविड-19. सो प्रोफेशनल एग्जाम्स मतलब बेसिकली प्रोफेशनल एग्जाम हुआ. आप अगर आपको लगता है मेरे सीए एग्जाम के साथ ही ये हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, बीट प्रोफेशनल डिग्री, बीट पोस्ट ग्रेजुएट, बीट मास्टर कोर्सेज, सबकी हालत खराब है. इन सब की हालत खराब है. सबके एग्जाम या तो पोस्टपोन हुए या कैंसिल हुए. बीट सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, CFA, ACCA, LLB, MBA, MCOM, MCA, MTech, many more. And let me tell you, तुम्हारा तो फिर भी क्लैरिटी आ गया. There are many exams such जिनका अब तक ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि वो होंगे या नहीं होंगे. They've been postponing it, they've been adjourning it to an infinite date, and it goes on. ठीक है. चलो 10th-12th के एग्जाम्स के चलो रिजल्ट आ गए बिना एग्जाम हुए, वेरी गुड. बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल एग्जाम्स. ठीक है. सो नाउ talking about the first thing, situations which are currently arising for professional exams, जो तुम्हारे साथ पहले थी. एक थी कि वो एडजॉर्न हो रहे थे, इनडेफिनेटली एडजॉर्न हो रहे. मैम वो देखो ना एग्जाम का डेट ही नहीं आ रहा, वो शिफ्ट करते जा रहा है. आईसीआई कैंसिल क्यों नहीं कर देता? तो लो, आईसीआई ने कैंसिल कर दिया. दूसरा केस वाज एग्जाम्स आर गेटिंग कैंसिल्ड. अब आई टेल यू, जब एडजॉर्न थे ना तब भी तुम्हारी प्रॉब्लम थी. मैम इट इज अनसर्टेन, पता नहीं होंगे भी या नहीं. ठीक है. एंड इसलिए वी आर अनेबल टू फोकस. अच्छा, now when they've got cancelled, तो प्रॉब्लम इज मैम हमने इतना मेहनत किया वो वेस्ट हो गया, our efforts are getting wasted. एंड दूसरा एग्जाम इतनी दूर है कि अभी से क्या प्लान करें ना, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करें. All that I want you to understand is it is never a phase when we are happy.
जब वो एडजर्न हो रहे थे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग में, और अब जब वो कैंसिल हो गया तब भी हमारी प्रॉब्लम्स है, एंड द प्रॉब्लम्स डू एग्जिस्ट. ओके, ठीक है ध्रुव, आई थिंक ध्रुव उमंग, आई विल एड्रेस ऑल ऑफ दीज एट द एंड. सो फॉर नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो मूविंग अहेड, what does this covid time you think is testing in you? ये जो टाइम, ये जो माहौल है, ये क्या टेस्ट कर रहा है? आपका अंडरस्टैंडिंग, basically most important, your understanding with your family. But whenever into anger, बैठे उसमें कोई पढ़ भी रहा है, कोई ऑफिस का काम भी कर रहा है, इफ यू हैव किड्स एट योर होम, यू हैव देम आल्सो मेकिंग chaos, इन सब के साथ भी यू आर एबल टू गो वेल. ओके, योर प्लानिंग, हाउ डू यू प्लान थिंग्स? आई टेल यू व्हाई प्लान थिंग्स. पहले जब ऑफिस चल रहा था, दुनिया सेट थी, यूज्ड टू गो, सुबह क्लास जा रहे हैं, उसके बाद ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद शाम को क्लास जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, या फिर सुबह क्लास जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, घर. सो यू नेवर मेड योर शेड्यूल. You never made your schedule. Your schedule was made by somebody else and imposed it on you, and you were following it. तुम आंख बंद करके शेड्यूल इसलिए मान रहे थे क्योंकि किसी और ने चिपका दिया था तुमको. तुमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था. You didn't have the discretion to tell your sir कि नहीं सर मैं सुबह 7 बजे नहीं आऊँ, सुनो ना 10 बजे हो गया. That was not possible, इसलिए तुम 6 बजे उठ भी रहे थे, तुम 7 बजे क्लास जा भी रहे थे. All that was happening automatically. It was imposed on you. But currently the situation is तुम्हें अपनी planning, अपनी prioritizing, अपना time management खुद करना है. ऐसे नहीं होता कि आज एक दिन उठ गए सुबह 6 बजे, अगले दिन उठ गए 10 बजे, फिर उठ गए 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर उठे ही नहीं रहे एक दिन तो. एंड देयर इज नो वन टू टेल यू ये कर, तेरे को वहां जाना है, देखो कहीं नहीं जाना बाबा, देखो पढ़ना है. एंड इफ यू थिंकिंग, एंड अगर तुम्हारे साथ सच में ऐसा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें उठाते हैं कि बेटा उठ, तेरे को पढ़ना है, दैट इज इनक्रेडिबल यार. हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, नॉट टू यू, कि तुम्हें सीए फाइनल की पढ़ाई के लिए उठाया जा रहा है. इंसान का इतना इतना डेडिकेशन होता है, उसको इतना स्ट्रेस होता है ना, वो खुद ही उठ जाता है यार मेरे को सुबह उठ के ये पढ़ना है. एग्जाम टाइम पे तो नहीं आती ना नींद, पढ़ के नहीं हुआ तो मैम 2 बजे तक नहीं सोई, 3 बजे तक नहीं सोई, क्यों क्यों नींद नहीं आई? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस लिया था. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो this is all that this covid time is testing in you guys: understanding, planning, prioritizing, time management, decision making, and overall crisis management skill. And do you know what does any professional exam expect from you? ये जो तुम CA final दे रहे हो, इससे क्या हो जाएगा? What does this professional exam expect from you? This expects you to transform. You have to transform from a learner, तुम पढ़ रहे थे अच्छा खासा, into a job ready and skilled qualified professional. और वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं हो सकता, वो सिचुएशन से भी होता है, जो आपको सिचुएशन मिल रही है. It is just that there is something around you which is trying to make you stronger, just that you don't realize. Of course, it's bad. It's very bad. इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? But it is going to get the best out of you. This transformation is necessary because जैसे ही सीए होने के बाद जॉब ढूंढने जाओगे ना, you should not come back saying मैं सीए तो हो गया बट मेरे को जॉब नहीं मिला. अरे जॉब मिलने के लिए और भी क्वालिटीज चाहिए होती. And those qualities are because post acquiring a job, you are expected to handle responsible position, and business functions rely on your knowledge, your decision making. There's so much. तो ये टाइम अगर तुम सोचो मेरा टाइम ना वेस्ट हो रहा है कोविड में, नहीं हो रहा. ओके, सो एंड कमिंग लास्टली, व्हाट डज प्रोफेशनल एग्जाम एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? एग्जैक्टली द थिंग्स जो कोविड तुम्हें सिखा के जा रहा है. अगर तुम उस पर फोकस करो ना, कोविड तुम्हें वही सिखा रहा है जो एक प्रोफेशनल एग्जाम तुमसे एक्सपेक्ट करता है. प्रोफेशनल एग्जाम भी चाहता है कि तुम अंडरस्टैंडिंग बनो, तुम प्लानिंग करो, तुम प्रायोरिटाइज करो, टाइम मैनेजमेंट करो, डिसीजन मेकिंग करो, और ओवरऑल क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडल करो. तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें सीए बनाएगी, ये टाइम तुम्हें अच्छी जॉब दिलवाएगा इफ यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. ओके, ठीक है, डोंट बिकम दैट वे कि हम तो भाई हम कोविड का बैच है तो हम पे तो ठप्पा लगा, ये तो बेकार लोग हैं. काय का बेकार लोग हैं भाई? हमने जिस माहौल में पढ़ाई की है वैसे किसी ने की हो तो बताओ. हमसे ज्यादा मेहनत किसी ने की नहीं है, हमसे ज्यादा हार्ड सिचुएशंस. हैव यू हर्ड योर पेरेंट्स एवर, एनी ऑफ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से कि हम स्ट्रीट लैंप में पढ़ते थे? वो उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल दैट ये वन है. ये तुम्हारी लाइफ का होने वाला है. हम कोविड में पढ़ते थे, सब बंद था, सब बंद. इवन इफ यू सिटिंग इन एन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, क्या भरोसा है कब तक ये रहेगा? तो डोंट गेट यूज्ड टू दैट कंफर्ट कि हमारे यहाँ तो सब खुला है मैम, जा सकते हैं. कल को बंद हो गया तो तू एडजस्ट करते करते तेरा एग्जाम सिर पे आ जाएगा. I hope you're getting. Okay, so finally, how do you study in this situation? There are certain tips that I want to give you
फॉर वॉट एवर सब्जेक्ट यू स्टडिंग, रादर तुम अपने घर में कोई छोटा भाई बहन है ना, उसको भी बोलोगे ना कि बेटा ऐसे पढ़, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा जो वो नॉर्मली शायद ना करता हो। ठीक है, ऐसे मत बोलना मैंने बताया, बट प्लीज गाइज लिसन टू बी वेरी केयरफुली। ये चीजें इफ यू इम्प्लीमेंट, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। ओके, कैसे? सबसे पहले सेट अप गोल्स। ऐसे हवा में मत पढ़ो, मैम अटेम्प्ट तो नवंबर में है ना, अभी तो जुलाई चल रहा है ना, अगर मैं एग्जाम में और प्रॉपरली लीव भी लेता तो मेरे को अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 ही महीने मिलना था, तो मैं अगस्त में पढ़ूंगा। वाह, हाउ ब्रिलियंट। जब बॉस तुम्हारी लीव कम देता है तो यो क्रिबिंग लीव नहीं दिया, और अब जब इतना लीव मिल रहा है तो ये लोग इतने लीव का भी क्या करूंगा, तभी पढ़ूंगा ना। वाह भाई, मतलब just think about it guys, understand there is one thing that only you need to have, that is discipline. तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है ना, तो इवन इफ यू गेट रेयरेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड अगर नहीं है ना, इवन इफ यू गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले सेट अप गोल्स, प्लान ईच डे, एंड इफ यू हैव बीन माय स्टूडेंट एवर, तुमने कभी मुझसे शेड्यूल पूछा है या ऐसा डिस्कस किया, मैंने हमेशा लोगों को बोला है एक दिन तो सब प्लान करते हैं, एक मंथ प्लान करते हैं, फिर एक वीक प्लान करते हैं, फिर एक दिन प्लान करते हैं, हर आवर प्लान करो, प्लान ईच एंड एवरी आवर ऑफ योर डे। इसलिए काय को मैम, आई टेल यू काय को, देखो कैसे होता है ना, हमने प्लान बना लिया कि आज के एक दिन में एवरी डे यू अलॉटेड सर्टेन चैप्टर्स, ठीक है, एंड एज पर योर प्लान आज के एक दिन में आप लेट्स से 10 चैप्टर पढ़ो, 10 छोड़ ज्यादा हो गया, 2 चैप्टर पढ़ो, ठीक है। अब आपका दिन स्टार्ट होता है, यू हैव टू हैव सम प्लान राइट, 8 बजे स्टार्ट होता है या 10 बजे स्टार्ट होता है, व्हाटएवर इज योर सीन, आपका दिन स्टार्ट होता है 8 बजे, ठीक है, 8 o'clock यू वोक अप बट यू फीलिंग टू स्लीपी, तुमने बुक खोल के पढ़ना स्टार्ट किया बट ध्यान नहीं लग रहा था, तुमने बोला छोड़ना, पहले नहा लेता हूँ उसके बाद देखूंगा, ठीक है, 11 ही बज गए, सब नहा के ब्रेकफास्ट करके वगैरह 11 बज गए, देन यू स्टार्ट टू स्टडी, जो आपका टारगेट था उतना नहीं हुआ, मतलब 2 चैप्टर में से एक चैप्टर आप चाहते थे फर्स्ट हाफ में हो जाए, वो नहीं हुआ, इतने में 11 से 1 आप पढ़े, 1 बजे लंच टाइम हो गया, ये लाइक हाँ ठीक है अभी तो पूरा दिन पड़ा है यार, पढ़ लूंगा, 1 बजे आप लंच करने बैठे, 1 से 2 तो लंच ही गया, मतलब ऐसे 1 घंटा कोई नहीं खाता बट हम खा रहे थे, ठीक है, तो 1 घंटे तक हमने खाना खाया, टीवी देखा, जो भी किया, उसके बाद आई वेंट बैक टू स्टडीज, 2 बजे हमने कहा यार बहुत नींद आ रही है, काम कर दो 1 घंटा सो लेता हूँ फिर पढ़ूंगा, फिर 4 बज गए, स्टिल यू विल नेवर रियलाइज क्या हो रहा है, टेल यू व्हाई, क्योंकि यू स्टिल फील अभी तो पूरा दिन है ना, पढ़ लूंगा, क्योंकि तुम्हारा दिन का शेड्यूल है वो, और अभी दिन बाकी है, ठीक है, 4 बजे यू लाइक अब मैं पढ़ता हूँ, 4 से 7 तुमने पढ़ा, अभी तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, सेकंड चैप्टर पूरा बाकी, लाइक हाँ ठीक है अभी तो बाकी है ना, दिन कर लूंगा, करते 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 रीच 11 और 12 इन द नाइट, एंड देन यू रियलाइज अब यार आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। नाउ द प्रॉब्लम वाज यू हैड प्लान द होल डे में टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं वो डे के एंड पे ही पता चलता है, डे के स्टार्ट पे नहीं पता चल सकता क्योंकि दिन अभी बाकी है, बट इफ यू प्लान ईच एंड एवरी आवर ऑफ योर डे कि भाई 8 से 10 मेरे को ये पढ़ना है, 10 के बाद मैं उठूंगा, तो 8 से 10 नहीं हुआ ना, वही मोमेंट पे तुम्हें पता चल जाएगा अरे यार मेरा शेड्यूल नहीं होगा अभी कंप्लीट, मेरा प्लान अकम्प्लिश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने पर आवर प्लान किया था और पर आवर के हिसाब से नहीं हुआ, मतलब अगर ये 2 घंटे यहाँ गए तो आगे का कहाँ पढ़ लूंगा ना मैं, आगे का भी तो शेड्यूल है। इफ यू प्लान ईच एंड एवरी आवर ना, इफ यू गेट डिविएटेड यू नो इट एट द सेम मोमेंट कि भाई मैं डिविएट हो चुका, मेरा शेड्यूल नहीं मीट होने वाला, मेरा प्लान गड़बड़ होने ही वाला, आई होप यू गेट इट। तो इसलिए ना सिर्फ दिन प्लान मत करो, हर आवर प्लान करो, प्लान ईच एंड एवरी आवर ऑफ योर डे कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक, चाहे उस 1 घंटे तुम पढ़ रहे हो या तुम कुछ और कर रहे हो, वो भी प्लान होना चाहिए। उठ के चले गए टीवी देख रहे, 3 घंटे से टीवी देख रहे, क्या नॉनसेंस, सीए वाले का एग्जाम है तेरा, कैसे मन कर जाता है बुक छोड़ के टीवी देखना इज ओके, बट देखते तो देखते ही रह गए, जहां के गए वहीं के हो गए, जिसके हो उसी के रहोगे या जिसके पास जाओगे उसी के हो जाओगे, जहां के हो वहीं के रहोगे ना, सीए के, आई होप यू आर गेटिंग। तो इसलिए ना जहां जाओ जिसके पास बैठो उसी के मत हो जाओ, याद रखना तुम हो किसके, लौट के उन्हीं बुक्स के पास आना है। लॉयल्टी भी कोई चीज होती है एंड लॉयल्टी हमेशा डबल साइडेड होती है, तुम अपनी तरफ से दिखाओ और सामने से बुक्स और डिग्री अपनी तरफ से दिखाएंगे, वन साइडेड कोई रिलेशन नहीं चलता। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। सो दैट इज सेटिंग अप गोल्स। सेकंड, सेट अ रूटीन गाइस, ऐसा 2 बजे उठे, 4 बजे उठे, 6 बजे उठे नहीं, ऐसे नहीं होता। सेट अ गोल कि भाई दिस इज सेट अ रूटीन कि मैं रोज इतने बजे उठूंगा, चाहे वो रूटीन में आप कुछ टाइम पे पढ़ रहे हो और कुछ टाइम पे डूइंग समथिंग एल्स, तुम चाहे न्यूज़पेपर पढ़ लो, अगर आ रहा है कोरोना में, तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, न्यूज देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं लूडो खेल रहा हूँ, लूडो खेल रहे सब लोग, लूडो खेलो, नो वरीज, बट एक रूटीन होना चाहिए
कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करूंगा। आई होप यू गेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी ने या किसी सिबलिंग ने बोला लूडो खेलेगा, हाँ मेरा एक प्रोविजन या कोई एक सेंटेंस का हाफ पढ़ा है मैंने और ये लूडो, हाँ हाँ बुक बंद करो चल दिए, हाँ हाउ कैन यू डू दैट? कैसे कर लेते हो? सो डू नॉट डू दैट। जो भी है शेड्यूल्ड है, हाँ भाई 2 घंटा मेरा ब्रेक हो जाना तब मैं खेलूंगा, अभी नहीं, अभी तुम लोग डू इट। नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रॉपर लर्निंग स्पेस गाइस। घर में ना कहीं भी पढ़ने बैठ गए ये मत करो कि आज डाइनिंग टेबल पे ही पढ़ने बैठ गए, वहां तुम खाना खाते हो वहीं बैठ गए, बाजू में टीवी है, घर वाले न्यूज देख रहे हैं, मैं वहां पे पढ़ रहा हूँ, किसको दिखा रहे हो? पढ़ना है ना तो एक घर का एक कोना ढूंढो जहां आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन ना हो मतलब उस लेवल का ना हो। देखो डिस्ट्रैक्शन का तो ऐसा है, पढ़ते टाइम तो हमें दीवार पे चढ़ती हुई चींटी भी इंटरेस्टिंग लगती है। पढ़ते टाइम तो एवरीथिंग अराउंड मी इज इंटरेस्टिंग, इवन इफ इट इज अ ब्लैंक वॉल आई वुड लुक इनटू इट एंड फाइंड क्या मस्त टेक्सचर होता है यार दीवार का, ऐसे भी हैं हम, ठीक है। बट ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शंस मत रखो, ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शंस अपने सामने मत रखो कि यहाँ पे मैं विंडो पे बैठ गया, उधर ना नीचे बालकनी से दिखता भी है तो कोई आवाज आई तो मैं देखता हूँ वहां क्या हो रहा है। अरे फाइंड अ कॉर्नर विच इज काम एंड यू कैन स्टडी देयर। ओके, जबरदस्ती आके हॉल में बैठो और पूरे घर को बोलेगा कोई डिस्टर्ब मत करना, अरे तो तू कोई और कोना ढूंढ लेना। अगर है ही नहीं, दैट इज द ओनली सीन, तो फिर तो आपके अंदर डिसिप्लिन 2 गुना ऑलरेडी होगा। इफ यू ऑलरेडी लिविंग इन एन एनवायरमेंट जिसमें हम सब मैम एक रूम में रहते हैं, नो वरीज, तो उसके बाद ना आपके अंदर डिसिप्लिन अलग लेवल का होगा कि यार मेरे को इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि सिचुएशंस मेक यू टफर गाइस। एक हम हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास घर में एक रूम हो 2 रूम हो, नहीं हमसे घर में नहीं पढ़ा था, हम लाइब्रेरी जाते थे, हम लाइब्रेरी जाते थे, वी हैड मेड इट अ सिस्टम। बट करेंटली तुम्हारा सीन वो है, तुम लाइब्रेरी अगर जाते भी थे तुम नहीं जा सकते, इट्स ऑल शट डाउन। तो तुम्हें घर को लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? दूसरों पे कंट्रोल करके नहीं, ए तू चुप रह मैं पढ़ रहा हूँ, ए तू चुप रह मैं पढ़ रहा हूँ, यू कैन रिक्वेस्ट देम थोड़ा आवाज कम कर लो यार। बट जितना हो सके तुम्हें अपने अंदर वो फोकस बढ़ाना पड़ेगा कि भाई मेरे को पढ़ना है, आई विल हैव टू फाइंड अ कॉर्नर जहां मिनिमम आवाज है। आई नो सच स्टूडेंट्स जो लिविंग रूम में हॉल में बैठते थे, पूरे घर को बोलते थे सब अपने अपने रूम में बंद रहो, क्योंकि उनको अपने रूम में बंद नहीं होना था। 1-2 दिन समझ में आता है, मैं वहां बैठे बैठे बोर हो गया, अब मेरे को यहाँ बैठना है, दैट इज ओके, बट परमानेंट प्लेस फॉर स्टडिंग हैज टू बी वन कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट, exchange of knowledge. Do talk to your friends but not nonsense. Talk to your friends over calls. Ask them कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई नया अमेंडमेंट तेरे को पता चला क्या, कुछ नया आ गया, तू कैसे पढ़ रहा है, ऐसे ही नॉर्मल बात करो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। एंड अटेंड लाइव क्लासरूम्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। आई होप यू नो बहुत सारे लाइव लेक्चर अपने हो गए यार, सतारा ब्रांच पे इतने तो लाइव अपने सेशंस, डाउट सॉल्विंग वगैरह लाइव लेक्चर्स अटेंड करो लॉकडाउन में, सो दैट यू स्टे कनेक्टेड विथ योर स्टडीज। अगर तुम रिक्रिएट, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं टीवी देख रहा हूँ, बट तू तो पढ़ रहा है, मैं मोबाइल पे यूट्यूब देख रहा हूँ, तू तो पढ़ रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगे मैम मेरा ना थोड़ी देर से एकदम मन हट गया था, मेरे को पढ़ने का ही नहीं, तो उठ के घूम ले। मैम उसके बाद में मन ही नहीं आ रहा था, और घूम ले। उसके बाद भी मन ही नहीं आ रहा था, तो एक काम करो, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया फॉर यू। ये जो अपने यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के, तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उनको जब तुमने पहली बार पढ़ा होगा ना, ऑब्वियसली तुमने देखा होगा और छोड़ दिया होगा, मार्क करना सीखो कि ये वीडियो ऐसा है कि एग्जाम के 1 दिन पहले ना अगर मैं ये पढ़ूं नहीं और सिर्फ इसको देख लूं तो भी हो जाएगा। ये वीडियो ऐसा है अगर मैं इसको पढ़ूं नहीं और सिर्फ इस वीडियो को देख लूं तो भी हो जाएगा। कभी मैं बोर हो रहा हूँ ना तो मैं ये वीडियो देख लूंगा, ये वाले से ना मस्त मेरे को रिविजन हो जाएगा। ऐसे ना वीडियोस मार्क करना सीखो। तो क्या होगा ना, मैंने भी ये फीलिंग लाइक मैम मेरा ना पढ़ने में मन ही नहीं कर रहा था, तो थोड़ी देर वीडियो देख ले, कोई चैप्टर अगर वीडियो से रिवाइज हो जाता है वीडियो से रिवाइज कर ले। और यूट्यूब में, इफ यू, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, यूट्यूब को अगर तुम मोबाइल पे चलाते हो, मोबाइल पे तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है। तुम्हारा रिवीजन है तो तुम 2x स्पीड पे देख लो, ऐसा नहीं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, डोंट डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट, एक वीडियो लेक्चर्स, एज यू नो वर्चुअल इज द न्यू रियल। डू नॉट वेट कि जब सब नॉर्मल हो जाएगा, जब सब नॉर्मल क्लासेस खुल जाएंगी तब मैं पढ़ाई चालू करूंगा, नहीं हो पाएगा। डू नॉट वेट फॉर एवरीथिंग अराउंड यू टू गेट नॉर्मल। ये मैं सबको बोलती हूँ, सिचुएशंस तुम्हारे आसपास की कभी परफेक्ट नहीं होंगी, यू विल स्टिल हैव टू स्ट्रगल एंड मेक इट। अपने आसपास सब कुछ ठीक करने में मत लगो, खुद को परफेक्ट करने में लगो, वो कम मेहनत में इजीली हो जाएगा। बट वी जस्ट डोंट वांट टू चेंज आवरसेल्व्स, वी वांट टू चेंज एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है। सो यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टू योर बेनिफिट। फालतू टाइम पास यूट्यूब पे करो मत, केक बेकिंग क्लासेस मत देखो, तुम्हारा वो सब टाइम नहीं है।
एंड फ्री क्लासेस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, देयर आर सो मेनी विच अपने भी हैं, उनको देखो, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लो, बिकॉज जब तक वो है ऐसा तो है नहीं कि अभी ठीक है ना वो पढ़े हैं कभी भी मिलेंगे. लर्न टू वैल्यू थिंग्स दैट यू गेटिंग फॉर फ्री. ओके, नेक्स्ट, स्टे अपडेटेड, कीप अ ट्रैक ऑफ वर्चुअल सेशंस ऑफ योर प्रोफेसर एंड टीचर. जैसे हमारा आज वर्चुअल सेशन है, वो तो ऋषिकेश सर सबको मैसेज भेजते रहते हैं ग्रुप्स पे, उसको छोड़ के भी कहाँ कहाँ क्या क्या वर्चुअल सेशन हो रहे हैं, कौन एक इंपॉर्टेंस बता रहा है, कौन अमेंडमेंट बता रहा है. ऑफ कोर्स डोंट गेट डाइवर्टेड. आई पर्सनली बिलीव एक सब्जेक्ट के 4 प्रोफेसर करने से सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा. एक सब्जेक्ट के 4 प्रोफेसर होने से सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा. तो स्टिक टू योर प्रोफेसर. दो तुम्हें लगता नहीं ये दोनों अच्छे थे, मेरे को दोनों अच्छे लगे तो दोनों ठीक है, बट ऐसा ना हो कि बहुत सारे मत कर लेना, क्योंकि अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके कई खुदा होते हैं. ठीक है, सो कमिंग बैक, लाइव लेक्चर्स वेबिनार बीइंग कंडक्टेड बाय वेरियस प्रोफेसर फॉर डाउट सॉल्विंग, वो भी अटेंड करो. स्टे हेल्दी एंड चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम गाइस. स्टे हेल्दी एंड चार्ज. खुद को सजा मत दो किसी भी चीज की. खाओ पियो मस्त रहो. ठीक है, बिकॉज करंटली अगर एज दे से, जैसे तुम डॉक्टर्स के कोई भी वीडियो देखो, दे से एवरीबडी इज अ कोरोना पेशेंट. ठीक है, यू जस्ट हैव टू फाइट इट विद योर इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी से कितना लड़ पाओगे वो मालूम नहीं है ना. ओके, मैं हमारे प्लान करते हैं, लेकिन कोई आई जस्ट आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. आई जस्ट फिनिश दिस, एक लास्ट पॉइंट बचा है, फिर आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. ठीक है, सो कमिंग बैक, स्टे हेल्दी एंड चार्ज. डू नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप और डेस्कटॉप 24/7. कि मैं आजकल ऑनलाइन पढ़ता हूँ ना, तो मैं दिन भर आंखें दुख जाएंगी बाबा. 2 दिन पड़ेगा, 4 दिन पड़ेगा, फिर 4 दिन नहीं भी पड़ेगा. एक रेगुलर ब्रेक्स लो, अपनी आंखों को कष्ट मत दो. क्योंकि सी, जब आप ऑफिस में काम करते थे ना, जब मैम ऑफिस में भी तो दिन भर लैपटॉप के सामने बैठा था. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड वर्किंग. ठीक है, वर्किंग में एज गुड एज यू गिविंग एन आउटपुट, स्टडिंग में देयर इज एन इनपुट. तू जो देख रहा है वो तेरे को याद रखना है, वो तेरे को समझना है, वो तेरे को लॉन्ग टर्म में रिटेन करना, फिर वो तेरे को लिखना है. तो उसका स्ट्रेस ज्यादा है. काम का क्या है, आज का काम आज खत्म करना. इफ लाइक मैम वो भी याद रखना है, तेरे को भी पता है 4 बार और होगा, याद हो जाएगा. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टडिंग एंड वर्किंग. टीवी भी देखने के लिए हम 24 घंटे टीवी देख सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस राइट, पढ़ने में और टीवी देखने में बहुत फर्क है. द अमाउंट ऑफ इनपुट दैट यू गिविंग इज टू मच. और जब इतना इनपुट डालना है तो थोड़ा ब्रेक्स भी चाहिए. ठीक है, ढंग से प्लान करके समझदारी से करो. टेक ब्रेक्स बिटवीन लेसन्स टू स्ट्रेच, हाइड्रेट ऑन, जस्ट अनप्लग. Whatever is your way. I will not tell you to गाने सुन, सबका वो तरीका नहीं है ना. जिसको जो तरीका है वो करो, बट इंश्योर कि तुम खुद को रिचार्ज रख रहे हो. एंड लास्टली, स्ट्रेस तो नहीं लेने का. स्ट्रेस नहीं लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का. मेरे को पढ़ना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को सीए पास करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए मेरे को वापस रूम में आके पढ़ना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट वो स्ट्रेस नहीं है. आज के जमाने में द काइंड ऑफ पीपल टेकिंग स्ट्रेस इज लाइक बियॉन्ड एनी लेवल. हम सब ऐसे, हम सब ऐसे. हमारी जनरेशन जिस लेवल का स्ट्रेस ले सकती है, वी कैन कम्पीट एनीबडी ऑन दैट. बट क्यों लेने का? ऑलवेज देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दैट, एंड ऑलवेज टेक वन स्टेप एट अ टाइम. नॉट, डोंट लुक एट द होल स्टेयरकेस, जस्ट लुक एट वन स्टेयर. एक बार प्लान बना लिया, तब पूरा स्टेयरकेस देखना पड़ेगा. उसके बाद एक हफ्ते का प्लान बना लिया, उसके बाद एक महीने का, वो सॉरी एक दिन का, और फिर पर आवर. बस हर दिन पर आवर पे फोकस करो. और याद रखना, जिस दिन किसी भी दिन का शेड्यूल पर आवर इधर उधर हुआ, अगले दिन का अपने आप अफेक्ट हो, क्योंकि उसको कवर अप भी तो करोगे. ठीक है, एंड डू कीप काम, डू नॉट पैनिक, डिस्कस इश्यूज विद योर सीनियर्स, टीचर्स एंड फैमिली. एंड व्हाई वरी अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल. तुम कोरोना कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो क्यों उसकी चिंता करके बैठे हो. जो चीज जैसे होनी होगी हो जाएगी. दिस इज यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट. अब तो तुम सब मेरे कॉन्टैक्ट में हो ऑलरेडी, तो स्टिल प्रोफाइल ये सी आदित्य 2 इसलिए लिखा है, 1 का फुल हो गया था इसलिए. दिस इज माई पेज, दिस इज माई चैनल, यू आर ऑल ऑलरेडी कनेक्टेड टू मी. दिस इज माई यूट्यूब चैनल जिसपे सारे वीडियोज वगैरह आई कीप अपलोडिंग वगैरह. अपने सतारा चैनल पे भी हमने डाले थे. सो इट्स ऑल अवेलेबल फॉर यू. We are available for you anytime, not 24/7 as I say, because तुम अगर मेरे को रात को 2 बजे कॉल करोगे, मैम सुनो ना मेरे को बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो शायद मैं ना उठाऊं, राइट. बट हाँ, इफ यू हैव सम डाउट्स, यू फीलिंग डीमोटिवेटेड आल्सो, तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो. तुम यहाँ कहीं कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, कहीं भी मैसेज करो. एंड चाहिए तो वॉइस मैसेज भेजो, बट वीडियो कॉल नहीं करो प्लीज. पीपल आर गिविंग मी फेसबुक वीडियो कॉल्स. मैम फील आता है भाई, क्या इतना भी क्या फील ना तेरे को. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कोप अप विद दिस स्ट्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल,
इज दिस ओके? ये सबको समझा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, मेरे को आपको वो भी देना है एबीसी एनालिसिस, तो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू दैट एबीसी एनालिसिस, फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, चलेगा? आई एम श्योर आपको चलेगा, तुम बहुत अच्छे लोग, ठीक है। सो फॉर नाउ so you want to say something? No, ma'am. It is actually a wonderful thing going on. Thank you so much. I came up so that I can help you out with the sharing screen. Okay, I think I'm done. मतलब मेरे को actually दो अलग-अलग चीजें share करनी थी ना. Is it now working? Can you see my screen? Yeah. Yeah, okay. Thank you so much. So, guys, this is the index of your CA final. ठीक है. If you're like, मैम हमारी बुक का तो ये इंडेक्स नहीं है, ICAI के स्टडी मटेरियल का यही है. अगर आपने किसी और ऑथर की बुक ली है तो फिर अलग बात है, बट ICAI के स्टडी मटेरियल का मेरी बुक का इंडेक्स यही है. ठीक है. So now let us talk about how to study, where to study. थोड़ा सा zoom करें. Zoom करना है, zoom करना है. Yes. At least by 20%. Okay, but ये लो यार, full zoom लो. yes, thank you. I am just reading all your comments and I'm really liking it. So we'll come to this. जिन्होंने अच्छे comments दिए मैं वो भी पढ़ूंगी और जिनके questions है वो तो I'll surely answer. So let me just quickly tell you क्या कैसे पढ़ो. Because and if you like मैम ये exam के लिए आप बता रहे हो, मैं मेरी एक बात सुनो. I am sorry I would contradict खुशबू on this. मैंने उनकी बात सुनी थी. But if you like मैम दोनों प्रोफेसर ने contradict किया. उन्होंने audit का बोला, मैं law का बोला. ठीक है. एक तो सबका अपना अप्रोच होता है एंड सेकेंडली ऑडिट में मिसलेनियस चैप्टर्स ज्यादा है एंड दैट विल एक्चुअली गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि चल छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए. लॉ में मिसलेनियस चैप्टर्स इतने ज्यादा नहीं है एंड आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स वेटेज वाइज पढ़ो प्लीज, क्योंकि वेटेज वाइज पढ़ोगे ना तो अगर एक पॉइंट के बाद, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी लास्ट है, इफ यू अंडरस्टैंड, ऑडिट थर्ड सब्जेक्ट है, लॉ फोर्थ सब्जेक्ट. ठीक है. सो बिफोर आई से एनीथिंग यू शुड नॉट फील लाइक अरे खुशबू मैम ने ऐसे बोला था, मैम ने ऐसे बोला, इन लोग को मालूम ही नहीं एक दूसरे क्या बोला. मेरे को मालूम है. ठीक है. सो इफ आई एम स्टिल टेलिंग दैट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. सुन लो मेरी बात. देखो पहले तो लॉ इज द लास्ट सब्जेक्ट. ठीक है. तो क्या होता है ना, आप अगर नॉर्मली भी पढ़ने बैठते हो, नॉर्मली एक इंसान को वैसे ही पढ़ना चाहिए कि यू स्टार्ट इन सम ऑर्डर. एग्जाम के एक दिन मतलब एक दिन पहले से पहले वाला जो फर्स्ट रिवीजन होता है आपका, दैट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ एग्जाम्स. मतलब पहले एफआर रिवाइज कर, फिर ये रिवाइज कर, एसएफएम, फिर ऑडिट रिवाइज कर, फिर लॉ रिवाइज कर, फिर सेकंड ग्रुप पे 4 करो. सो दैट जब एग्जाम आएगा तो यू स्टार्टिंग विद एफआर अगेन, तो सब रिवाइज हो चुका है. ठीक है. इट्स अ प्रॉपर साइकिल. Now, my subject in the first group automatically comes at the end. ठीक है. तो वहां पे ना क्या होता है, ऑलरेडी तुम बहुत टायर्ड हो. अब अगर तुमने छोटे छोटे चैप्टर्स टिक करने के चक्कर में पढ़ना चालू किया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो टिक तो होते जाएंगे. ओके. बट धीरे धीरे यू स्टार्ट गेटिंग टायर्ड, लाइक बस हुआ. तो जो तुमने एंड में छोड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे. सो जस्ट फॉर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू स्टडी. मेरा हमेशा फोकस होता है इस पे. ये वेटेज मैंने नहीं, माई बाप ने दी. ठीक है. ICAI की दी हुई वेटेज है ये मेरी दी हुई नहीं है. सो ICAI ने दी हुई ये जो वेटेजेस हैं इसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो आई ऑलवेज प्रेफर, अगर तुमने नोटिस भी किया मैं पढ़ाती भी वैसे हूँ, आई टीच इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट एंड छोटा छोटा चैप्टर्स एट द एंड, कि अगर तू पक भी गया कि यार मैम अभी नहीं पढ़ा रहा था, लास्ट के 4 चैप्टर छोड़ दिए, मैंने लॉ बंद किया, मैंने दूसरा सब्जेक्ट उठाया क्योंकि मेरा शेड्यूल, देयर आर रीजंस राइट, मेरा शेड्यूल जो प्लान था ना उसमें लॉ ने उससे ज्यादा टाइम ले लिया, तो लास्ट में मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट का भी टाइम चला जाता, इसलिए मैंने सोचा छोड़ जाने दे इसको, वो पढ़ लेता हूँ. अब जो तूने जो जाने दे में छोड़ा ना, वो डायरेक्टर्स है, वो इकोनॉमिक लॉस है, वो सिक्योरिटीज लॉ है, तो बहुत प्रॉब्लम है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो जस्ट फॉर दैट आई वांट टू टेल यू कि लॉ में अगर तुम पढ़ो तो पहले वेटेज वाले बड़े चैप्टर्स, इवन तो वो बड़े, बट क्या होगा ना उनका टिक, देखो छोटे चैप्टर्स लॉ में अगर तुम छोटे चैप्टर्स को टिक कर रहे हो और बाद में इंडेक्स देख के सोच रहे हो हाँ मेरा कितना हो गया, तुम सिर्फ खुद को उल्लू बना रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा जो बचा है ना वो बहुत बड़ा है ना. सो इसलिए लॉ की अगर तो हम बात करें तो स्टडी वेटेज वाइज, दैट इज द फर्स्ट सजेशन दैट आई गिव टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. वाइंडिंग अप इज टू बिग, हाउ टू स्टडी इट, वी कम टू इट नाउ. अपॉइंटमेंट. ओके. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट एंड क्लास, ये जो आपका डायरेक्टर चैप्टर है, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज. ये फर्स्ट पढ़ना है आपको.
ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े मैम? फर्स्ट, इसके बाद डू नॉट गेट इनटू द अदर चैप्टर्स ऑफ योर कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, अगर तुम देखो इफ यू लाइक मैम हमको ना दिख नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ देखना भी जरूरी नहीं है वैसे तो। आई विल रीड इट आउट फॉर यू एवरीथिंग, पहले आप सुन लो, जब हम वहां आएंगे तब वो आपको दिखेगा। फॉर नाउ दिस इज योर सेक्शन ए कंपनी लॉ, ठीक है, दिस इज योर सेक्शन बी सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है, एंड दिस इज योर पार्ट 2 विच इज इकोनॉमिक लॉस। ये 3 पार्ट, ठीक है। सो नाउ कमिंग अप, जब वो खत्म हो जाएगा मैम डायरेक्टर्स, फिर ये पढ़ो सिक्योरिटीज लॉ, बिकॉज इफ यू टॉक वेटेज वाइज डायरेक्टर्स कम ऑन द हायर साइड, वेटेज इज 25 मार्क्स, ठीक है, इसका ऑन द हायर साइड वेटेज इज अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स, ठीक है, 25 एंड 15 मेक्स इट 40, एंड उसके बाद पढ़ो इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि इसका वेटेज इज 30 मार्क्स जो आईसीआई ने खुद बोला, विच मेक्स इट 70 मार्क्स। तो क्या होगा, अगर तू थका भी तो पहले तो इसलिए नहीं थकेगा कि अरे यार अभी तो बहुत सारा बाकी है, क्यों? क्योंकि तुम्हें दिखेगा कंपनी लॉ के मेरे सिर्फ 3 हुए हैं 13 में से, तो मेरे कुछ चैप्टर्स बचे 10, तो इतनी जल्दी छोड़ने का मन नहीं करेगा, बट तेरा 70 मार्क का फिर भी कवर हो चुका है, ठीक है। सो वंस आपका 70 मार्क का शेड्यूल कवर हो गया, नाउ कम डाउन हियर एंड प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले यू डूइंग दिस इज योर 4th प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, देन 5th सेट में यू डूइंग दिस 4 चैप्टर्स which is companies incorporated outside India. 4th was operation mismanagement. 5th is companies incorporated outside India, miscellaneous provisions, compounding of offences, and National Company Law Tribunal Appellate Tribunal, that is NCLT, NCLT. ये आपका 4th सेट होता है। इसके बाद अब तुम्हारा थकने का स्कोप हो सकता है, मैम मेरे को बहुत पक रहा था, मेरे को बहुत ये हो रहा था, वो हो रहा था, सो दिस हैज टू बी योर 6th प्रेफरेंस, वाइंडिंग अप, and keep these 2 inspection and compromise as your 7th one, ठीक है। then if you like ma'am ये तो बच गया corporate secretarial practice, I tell you इसको अलग से honestly पढ़ना नहीं पड़ता, this is your drafting of resolutions and drafting of things। अगर तुम directors को ढंग से पढ़ोगे ना तो उसके past exam question में बहुत सारे resolution आ जाते हैं, so you will cover this there only। still if you get time तो तुम इसको अलग से पढ़ो, वरना you don't have to really study this अलग से। is this okay? ठीक है, so this is basically how you're supposed to do it। ओके, मेक सेंस, सबको समझा? ठीक है। सो फॉर नाउ कमिंग बैक, वंस यू डन विद दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टडिंग, एंड नाउ दिस ऑर्डर हाउ मेनी टाइम्स यू सपोज टू फॉलो? यू सपोज टू फॉलो दिस ऑर्डर वंस जब तुम पहली बार पढ़ो, दूसरा जब तुम रिविजन करो, और तीसरा जब तुम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो, ठीक है। इट्स लाइक मैम कहाँ से पढ़े? ऑब्वियस क्वेश्चन, देखो ऑब्वियसली समरी नोट्स होते हैं, समरी बुक्स होती है मार्केट में, तुम समरी बुक्स खरीद सकते हो, आई मीन एज यू विश, मतलब मार्केट तो बंद है बट पीडीएफ मिल रहा है, कुरियर हो रहा है, ऐसी सब चीजें हैं फिलहाल। सो तुम समरी बुक खरीद सकते हो, समरी बुक तुम्हारा इट्स लाइक मैम नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, देन ट्रस्ट योर सेल्फ। तो फिर तुम हाईलाइट टेक्निक ना मैंने अपने सारे बैचेस में सिखाई होती है, तो अगर इफ लाइक मैंने तो आपका कोई बैच नहीं अटेंड किया, सतारा विकास पे भी जो हमारा अपलोडेड था उसमें भी हाईलाइटिंग टेक्निक था विच पीपल हैव लर्नड, मेरे जो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है उसमें भी हाईलाइटिंग टेक्निक मैंने सिखाया है। हाईलाइटिंग टेक्निक से क्या होता है, आप अपनी एग्जिस्टिंग बुक को 60% बना देते हो, 40% कम हो जाता है, तो देन यू रीड ओनली हाईलाइट्स, ठीक है, वो वहां पे ढंग से पढ़ाया है, यू विल अंडरस्टैंड इट देयर, ठीक है। उससे भी आगे बढ़े तो अब अगर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल चैप्टर्स, कि कोई चैप्टर मेरे को पकाऊ लगता है मैम तो क्या करूँ, कोई चैप्टर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो क्या करूँ? सी आई वुड सजेस्ट जो छोटे चैप्टर्स होते हैं उनको ना, अगर आपको लगता है लॉ पढ़ते पढ़ते ना अभी बस हो गया, मेरे को ना अभी कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं, आई वुड टेल यू कि जब तुमने 1 था अपना डायरेक्टर्स, 2 वॉज सिक्योरिटीज लॉ, 3 वॉज इकोनॉमिक लॉ, ये जब हो गया ना उसके बाद एक बार के लिए अगर तुम्हें लगे कि नहीं मेरे को एक बार ब्रेक लेना है लॉ से, तो उसके बाद क्या करो ना, ये छोटे चैप्टर्स या यहाँ के या ऑडिट के या किसी भी चैप्टर के छोटे चैप्टर्स ना हमेशा इसके लिए बचा के रखो कि कभी अगर तुम्हें बहुत बोर हो रहा है, तुम पढ़ रहे थे, तुम्हारा नहीं मन लग रहा, बोर हो रहा है इज नॉट द राइट टर्म ऑनेस्टली सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए, बट मेरा ध्यान नहीं लग रहा था मैम, मैं थोड़ा डाइवर्टेड था, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मेरे को थोड़ा जा नहीं रहा था दिमाग में, तब तुम जाओ बाहर कॉफी पीने और एक छोटा चैप्टर ले जाओ, कॉफी पीते पीते उसको सिलटा लो। तो ये छोटे चैप्टर्स ना तब काम करते हैं, तो तुम्हें फील नहीं आता कि मैंने टाइम वेस्ट किया, वो छोटा चैप्टर ऐसे सिलट गया। ऐसे चैप्टर्स मार्क करो कि यार ये पढ़ने में तो बहुत त्रास है, लेकिन इसका वीडियो देख के समझ में आता है, जैसे SCRA, जो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो पे कमेंट कर रखा है कि मैम SCRA तो मतलब पता ही नहीं था इतना सिंपल है, तो तुम्हें पता है कि इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ये वीडियो से इजीली हो जाएगा, तो वीडियो मार्क करके रखो, अपने लिए लिख के रखो कि इसका मैं वीडियो देखूंगा, व्हाटएवर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर ओन SWOT एनालिसिस गाइस,
ठीक है, अगर आप अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करोगे ना, तो यू विल नो व्हाट टू टॉक, व्हेन टू टॉक, what to plan, how to plan. And please remember, the best way to predict future is to create it. That is the best thing. तुम प्रेडिक्ट करो मेरे साथ ऐसा होगा, मैं करूंगा ऐसा, इसलिए होगा, ठीक है. एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू मैम, सीए में ना नसीब भी बहुत काम करता है. आई अग्री, आई ऑलवेज अग्री. एंड मैंने ये बात ना आप सबको बोली है कि भाई सीए में नसीब काम करता है, ठीक है, बट कितना काम करता है, कितना काम करता है. तुम पेपर लिखने मत जाओ, नसीब से पास हो जाओ, नहीं हो जाओगे, राइट. सो नसीब क्या हेल्प करता है, वो जो आप जाने के पहले आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के जा रहे हो, उससे क्या हो रहा है. आई टेल यू क्या हो रहा है. तुमने क्या पढ़ा डिपेंड्स ऑन यू, कितना तुमने रिवाइज किया डिपेंड. तुम्हारी मेहनत 100% होगी, योर मेहनत इज गोइंग टू बी 100%. उसके बाद तुम सही सलामत एग्जाम सेंटर पहुंच गए, वो नसीब था. तुम एग्जाम में जाके ब्लैंक नहीं हुए, वो नसीब था. तुम्हारे आजू बाजू कोई कॉपी कर रहा था जिसमें तुम इन्वॉल्व होके पकड़े नहीं गए, वो नसीब था. तुम्हारा अचानक से समथिंग हैपेंड एंड यू कुड नॉट राइट इट प्रॉपर्ली, वो नसीब था. बिकॉज आई नो सर्टेन स्टूडेंट्स सच आल्सो, जो अपना सीए फाइनल का एग्जाम देने जा रहे थे लॉ का, और एग्जाम सेंटर बाइक से जा रहे थे, जाते टाइम खुद का एक्सीडेंट हो गया, खुद के लग गई है चोट, हाथ में लगी है, खुद पहले वहां जा रहे हैं मेडिकल, बैंडेड खरीद रहे, राइट हैंड इंसान को राइट हैंड में बैंडेड लगाएंगे, 4 खून निकल रहा है, और फिर सीए फाइनल का एग्जाम लिखने गए. ये नहीं हो रहा है ना, वो नसीब है. उसके बाद क्या नसीब है, तुमने अपना पेपर 100% लिख दिया, अब तुम्हारे साथ स्केलिंग नहीं हो रहा है, वो नसीब है. स्केलिंग के जो कुछ पेपर्स उठाए जाएंगे उसमें तुम्हारा नहीं उठाया जाएगा, ये नसीब है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो नसीब वर्क्स ओनली 1%, 99 हैज टू बी योर एफर्ट्स. इफ योर एफर्ट्स गो 98, 100 होएगा ही नहीं, 100 नहीं हो पाएगा. और जब तक 100 नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सुनो, इफ यू फील कि मैम बहुत डिफिकल्ट है यार ये टाइम पे पढ़ना, तो लेट मी टेल यू, yes, it is going to be difficult, but it is going to be worth it. Trust me, it's going to be worth it. And पढ़ते रहो guys, पढ़ते रहो, because ये डिग्री ऐसी है ना, you know there are certain degrees such also जिसमें भारी भारी 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख की फीस भरो, डिग्री तो आनी है, ठीक है, बट ये डिग्री कुछ और. So for CA we can say, बिकने वाले और हैं, जाओ जाकर खरीद लो. हम कीमत से नहीं, किस्मत और मेहनत से मिला करते हैं. So that's CA, and trust me, the day you get this degree, you will know what it values. Okay, so now let's have a question answer session. Rishikesh sir, you can please come back. वाओ मैम, आप शायरी और कविता भी बहुत ही अच्छी बोलती है. इट्स वेरी वंडरफुल. Thank you so much. Thank you so much, Rishikesh sir. एक स्पेशल सेशन वैसे उसके लिए रखते हैं, एंटरटेनमेंट सेशन. फिर तो आपको जुगलबंदी रखनी पड़ेगी महेश सर के साथ. एब्सोल्युटली, बहुत मजा आएगा. Okay, so I'll quickly start taking all your doubts. ठीक है, मतलब all your comments that had come. मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ, ठीक है. So good morning. So we started from here. So Krish Gehlot, good morning. Ma'am, please make a video on presentation in exam. Okay. Honestly, if on presentation I had to say, I would say right now only. पहले तो it really कितना फर्क पड़ता है मैम, प्रेजेंटेशन कैसे करना है. सी लॉ के में ना ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं होता है. यू डोंट मेक चार्ट्स इन योर लॉ का पेपर, यू डोंट मेक चार्ट्स. तुम्हें प्रोविजन लिखना होता है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ केस स्टडी इट हैपेंस इन 3 पार्ट्स. ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन, देन देयर इज प्रेजेंट केस, एंड देन देयर इज ऑब्वियसली योर कंक्लूजन. नाउ देयर आर सम पीपल हु हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग हेडिंग्स देते हैं, जैसे डीटी में देते ना, प्रोविजन, ओके, प्रेजेंट केस, कंक्लूजन. वो नहीं भी दोगे, लॉ में बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि अगर तुम लॉ के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखो, सजेस्टेड देखो, कहीं भी आपको ऐसी हेडिंग्स नहीं दिखती. सो इवन इफ यू डोंट राइट द हेडिंग्स इट वर्क्स. ठीक है. सो मैम, शुड वी डू स्कैनर? हाँ जी. I think that question was for women, maybe. Okay, ठीक है. So विभूति वाला क्वेश्चन भी ऑडिट का है. मुग्धा, थैंक्स मैम अ लॉट. Sir, session is going very superb. Hello Aditi ma'am. Hello Aditi ma'am. Good morning ma'am. Hello Aditi ma'am. मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है. Anyways, Umang, hello ma'am. Is there any major amendment in law, or we can continue with the old book? If you following the old book, with that if you study RTP, it works. कुछ बहुत बड़े अमेंडमेंट नहीं है, RTP साथ में पढ़ना पड़ता है. वो ओल्ड मतलब कितनी ओल्ड है उस पर भी डिपेंड करता है. बहुत ओल्ड है तो प्रॉब्लम है,
लास्ट अटेम्प्ट की है, इस वाले अटेम्प्ट की, तो आरटीपी के साथ इट विल बी सुपर. Ma'am, while studying law, I have started with allied first, just to finish it. Am I on the right track? Yeah, but then ensure कि important chapters करे बिना छोड़ मत देना law को फिर. If you started from there, obviously allied is also important. It is 30 marks thing. But उसके बाद then come down to other important chapters और फिर छोटा छोटा chapters पढ़ना. ठीक है? Now, yes, ma'am, visible. Okay, your session is so good, ma'am. You're telling all the stuff we do. I so know, guys, because in my family also I have many students around. ठीक है, तो मैं उनको देखती हूँ वो लोग क्या करते हैं, and you know वो देख के बता रहे यार. And then you guys, you've been messaging me so much in all this while for all the motivation that you need, all the doubts that you need. Majority तो मैं तुम्हें सच बताऊँ, मुझे जितने भी messages आ रहे हैं ना, doubts तो video भेज देते हैं, काम हो जाता है. But other than that, सारे messages motivation के लिए आए. You really need motivation this time, and I understand. But let me tell you guys, मैं तुम्हें motivate करूंगी is an external force. तुम खुद को motivate करोगे is an internal force. Let's have a combo of this. हमारा external, तुम्हारा internal, and trust me, you will work wonders in this time. Trust me, ये तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ी चीज होगी किसी को बोलना कि मैं कोरोना टाइम पे सीए फाइनल पास हुआ. Trust me, it's no less than studying under a street lamp. It's no less than that. तुम्हारे आसपास कितनी भी सहूलियत हो, the situation is such, it's a pandemic यार. इसमें सबके साथ बुरा हो रहा है, तुम इसमें कुछ अच्छा निकाल के ले आओ, तो इससे बेटर क्या है? I told this the other day to somebody, 2020 is a year जिसमें तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो रहा. मैम मेरे साथ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा. अरे अच्छा नहीं हो रहा छोड़, सबके साथ बुरा हो रहा है, तेरे साथ बुरा नहीं हो रहा ना, मतलब यू आर हैप्पी. लर्न सैटिस्फैक्शन इन लाइफ. किसी बहुत सीनियर इंसान ने ये बताया था मुझे कि एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने की इच्छा रखना इज गुड, एज अ टारगेट उसको रखो, बट सेटिस्फैक्शन आधा एवरेस्ट चढ़ के भी लेना सीखो, क्योंकि तुम आधा चढ़े हो, कुछ तो नीचे है. और हम जैसे लोग तो एवरेस्ट का फोटो देख के भी खुश हैं कि हमने एवरेस्ट देखा, दूर से देख के आएंगे खुश हैं. तुम आधा एवरेस्ट चढ़े हो. सो लर्न टू गेट सेटिस्फाइड कि हाँ चल मेरे को आगे और चढ़ना है, बट यहाँ पे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं और मेहनत करूंगा पर मैं सही जा रहा हूँ. और जब तक वो सेटिस्फैक्शन को लेना सीखो कि चल मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा ना, तो अच्छा ही है यार. अब अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हारा सीए हो सकता है. ठीक है, ट्रस्ट मी, ये टाइम ना यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ, यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ. ओके, योर सेशन इज सो गुड मैम, यू आर टेलिंग ऑल द स्टफ दैट वी डू. डीएस मैम, आर्ली प्लान करते हैं लेकिन कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल में सॉल्व नहीं होता तो पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है. क्यों करने का पूरा शेड्यूल खराब? आई टेल यू, आपने 1 घंटे का प्लान लिया है, बट पहले तो ना आपके प्लान्स बहुत रियलिस्टिक होने चाहिए. ऐसे नहीं कि 1 घंटे में 6 चैप्टर उड़ा दूंगा. अरे क्या उड़ा देगा क्या? सो इट हैज टू बी दैट वे कि जैसे आप कोई थियोरी ले रहे हो, तो थियोरी में आई डोंट नो इफ यू नो दिस, तुमने कभी कैलकुलेट किया भी है कि नहीं. एक नॉर्मल स्टूडेंट, सीए फाइनल स्टूडेंट 1 घंटे में 10 पेज पढ़ता है. ठीक है, अगर आप एकदम ही स्टार्ट, मतलब मैम अभी तो बुक को हाथ लगा रहा हूँ, तो हो सकता है 8 पढ़ोगे 1-2 दिन, उसके बाद 10 पेज पढ़ता है. रिविजन में वो 12 पेज पढ़ता है, सेकंड रिविजन में वो 15 पेज पढ़ता है. ठीक है, बट नॉर्मली 10 पेज पढ़ता है. तो व्हेन यू प्लान ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए 60 पेज का चैप्टर है, अगर मैं 1 घंटे में 10 पेज के हिसाब से भी रखूं तो ये 6 घंटे में खत्म होना चाहिए. चल मैं अपना थोड़ा खींचूंगा अभी तो 5:30 में हो जाएगा, बट कीप इट 6, आधा घंटा बच गया, इट इज बेटर. पूरा शेड्यूल आगे का खराब नहीं होगा. एंड यू विल गेट सेटिस्फैक्शन ऑल्सो. अरे वाह, मैं शेड्यूल अचीव कर पा रहा हूँ. इतना ईजी भी मत बनाओ कि मैं 6 घंटे में एक चैप्टर पढ़ेगा विच इज ओनली 10 पेजेस. दैट इज नॉनसेंस. और इतना डिफिकल्ट भी मत बनाओ, क्योंकि व्हेन यू विल नॉट अचीव इट ना, यू गेट डीमोटिवेटेड. ठीक है ना? Really ma'am, you're telling all reality. Thank you Kalyani. Shruti, whatever you're saying was so much needed ma'am, thanks a lot for this. Mithali, man ki baat of students really realizing where I'm lacking in studies. Krishna, I actually see the cake baking classes nowadays a lot. I so knew na, cake baking. I'll tell you, Amazon के top 100 products में 11th product Amazon का is cake डेकोरेशन का वो जो टर्न टेबल होता है जिसपे रख के घुमाते हैं, वो 11th प्रोडक्ट हो चुका है. इतना केक बेक कर रहे हैं हम लोग. तो आई नो, बहुत केक बेकिंग वीडियोस देख रहे हो, मत देखो. आई नो दे आर वेरी सैटिस्फाइंग. क्यों? तुम्हें केक नहीं बेक करनी, तुम्हें अपनी लाइफ की केक बेक करनी, उस पे फोकस करो. ठीक है. सो ma'am, you're telling reality which we were doing nowadays. Rajat, ma'am, your advice is always too precious. Of course it is, but you know, फ्री में जो चीज मिलती है ना, उसकी वैल्यू जो कर ले वो बड़ा. Anyways, coming back. So sweet of you, ma'am. Thanks a lot. चलेगा नहीं दौड़ेगा, ma'am. Bansi, thanks. Rajat, ma'am, please give some tips to minimize the wastage of time which has happened because of mobile, like watching videos and news on mobile. I'll tell you. मोबाइल में ना एक ये होता है फीचर,
फ्लाइट मोड, या तो उसको लगाओ। अगर आपको लगता है नहीं मैम यूट्यूब पे मेरे को वीडियोस तो देखने थे, तो वीडियोस जब देख रहे हो तो नोटिफिकेशन ऑफ करें, सेटिंग्स में जाओ, नोटिफिकेशन ऑफ होती है सारी ऐप्स की, व्हाट्सएप सब ऑफ हो जाए। करो इतना। सी हमारे जब हम सीए फाइनल देते थे तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसा करते थे, वो अपना स्मार्टफोन घर पे रख के आते थे, वो कीपैड वाला फोन ले आते थे मम्मी से, क्यों, मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है। अरे डिस्ट्रैक्ट मतलब वो डिस्ट्रैक्शन तेरे हाथ में है ना, खेलने को तो वो कीपैड वाले पे भी हम स्नेक खेल सकते थे, नोकिया का जो फोन आता था, इफ यू हैव प्लेड दैट। ठीक है, तो इट्स अबाउट, एंड आई यूज्ड टू हैव दैट, माय स्मार्टफोन में स्टॉप वॉच इंस्टॉल्ड थी, तो मैं अपनी स्टॉप वॉच फोन को ना हमेशा लैंडस्केप मोड पे रखने का, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसे रखने का, स्टॉप वॉच चलाने का और सामने रखना है। उस दिन भी मुझे किसी का फोन आया था, मैं आई एम नॉट एबल टू फोकस, तो मैंने उनको भी यही बोला था, स्टॉप वॉच लगाओ, ऐसे ऐसे रखो सामने, ऐसे सामने, और यहाँ पे बुक रखो और पढ़ो। क्या होगा ना, स्टॉप और टारगेट रखो कि भाई 1 घंटे में अगर 10 पेज पढ़ने तो मतलब 6 मिनट में 1 पेज पढ़ना है। हर 6 मिनट, जैसे ही 6 मिनट घूमेगा और पेज नहीं घूमेगा, स्ट्रेस आएगा। एनालॉग क्लॉक का क्या होता है ना, वो जो अपनी बड़ी वॉल क्लॉक होती है उसमें पता नहीं चलता 1-1 मिनट, इसमें 1-1 सेकंड टिक 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 साइड ऑफ द आई से दिखते रहता है। तुम थोड़ी देर भी यहाँ देखोगे, इस पे नजर जाएगी, तुम लौट आओगे। ठीक है, सो आई एम श्योर ये वाह क्या बात है उसके लिए होगा, अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके कई खुदा होते हैं। ओके, वाइंडिंग अप इज टू बिग, हाउ टू स्टडी इट। देखो वाइंडिंग अप में ना, अगर तुमने आईबीसी पहले पढ़ लिया, आई हैव अ वेरी गुड सजेशन फॉर यू, आईबीसी पहले पढ़ो, उसमें लिक्विडेशन तुम्हारा कवर हो जाएगा। उसके बाद वाइंडिंग अप में आओ, और वाइंडिंग अप में सिर्फ वहां तक पढ़ो, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर तक, रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर तक। इनिशियल सेक्शन है कुछ 8 सेक्शन, उसके बाद का तो मेजोरिटी आईबीसी से कॉमन है, और सिर्फ नजर भी मारोगे तो भी हो जाएगा, बट रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर तक ध्यान से पढ़ो, उसके बाद का ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो भी चलेगा। Very well said, ma'am. Nice inspiration. वाह वाह क्या बात है. Please make your videos public again, ma'am. मुग्धा, I think they are public. Otherwise मेरे चैनल पे भी वीडियोस हैं, तुम वहां पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो. DS November 19 book will work. Yes, November 19 book with 2 RTPs will work. ठीक है. Prasanna, good morning, ma'am. I'm from Chennai. Where can I get your revision chart book? Whether I can get through online delivery? I think Prasanna, you messaged me also for this. I just realized after seeing this. There is no chart book. There's a summary book that I have. उसमें tables भी हैं, charts भी हैं. So I think I'll reply to you on your this thing, because you're telling where do you buy my summary book is not right. So I'll tell you on your message. I'll reply. Ma'am, this paper will be difficult or as usual? Full paper will be difficult or as usual. To be honest, ये एक normal November attempt है. ये एक नॉर्मल नवंबर अटेम्प्ट है, और नवंबर अटेम्प्ट जैसा आता है वैसे, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट कि कोरोना था ना तो डिफिकल्ट पेपर है इजी, इट्स गोइंग टू बी अ नॉर्मल पेपर, इट कुड कम डिफिकल्ट, इट कुड कम इजी. सो आई मीन अनलेस आई गो एंड मीट द पेपर सेटर पर्सनली, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस, बट ऐसे ही देखो जैसे आपका एक नॉर्मल अटेम्प्ट होता है, आप कैसे देखते हो उसको वैसे ही देखो. देयर आर पीपल कमिंग अप सेइंग इस बार तो बहुत डिफिकल्ट रिजल्ट निकालेंगे. मैं तुम्हें बताऊं, इस बार नॉर्मल भी रिजल्ट निकाला तो नंबर्स भी डिफिकल्ट ही आएगा, क्योंकि देने वाले डबल हो गए, एटलीस्ट 1.5 तो हो ही गए, क्योंकि नवंबर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो दे ही रहे हैं. मे वाले पहले 1.5 होते थे, लेट्स से आधे पास होंगे, आधे वापस देंगे. ठीक है, इस बार सारे वापस दे रहे हैं, तो जो पास हो जाते थे ना मई में, वो भी नवंबर में दे रहे हैं. ठीक है, सो रिजल्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पेपर्स जैसे नॉर्मली किसी भी अटेम्प्ट के होते हैं वैसे ही होंगे. प्रफुल, मैम दिस पेपर विल बी डिफिकल्ट डन. साक्षी, मैम SCRA रूल एप्लीकेबल है क्या? SCRA चैप्टर में एज मेनी थिंक आई डिडंट फाइंड इन मॉड्यूल. एक्चुअली उन्होंने एप्लीकेबल किया, आप आरटीपी से पढ़ सकते हो, SCRA रूल आरटीपी में मिल जाएंगे आपको, लास्ट अटेम्प्ट की इस अटेम्प्ट. शेख लोबना, मैम प्लीज सजेस्ट हाउ मेनी आवर्स शुड बी अलॉट टू ईच चैप्टर सो दैट वी कैन शेड्यूल इट अकॉर्डिंगली. मैंने आपको बोला ना, आवर्स पेजेस के हिसाब से गिनो, पेजेस के हिसाब से गिनो, ये 60 पेज का है, ये 70 पेज का है, 80 पेज का है, ये 90 पेज का है, उस हिसाब से आवर्स अलॉट करो. 1 घंटे के अगर आपका रिविजन है तो 12 पेज, मतलब वो आपके ऊपर है. आई वोंट एनफोर्स यू ऑन दिस. तुम स्टार्ट करो, तुम्हें लगे कि मेरा 10 पेज हो गया, तो अगला वाला जो शेड्यूल बनेगा वो 12 पेज के टारगेट से बनेगा. एंड इनिशियली तुम सबको मैं बोल रही हूँ, सब लोग सिर्फ 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाओ, पर आवर बेसिस वाला, पर आवर से पर डे से लेके पर वीक 1 हफ्ते का बनाओ, एंड लेट्स सी इफ इट रीचेस. 1 महीने का बना लेते हैं, एक पूरा दिन उसमें डाल देंगे, और फिर नहीं हुआ तो पूरे महीने का स्क्रैप. 1 हफ्ते का बनाओ, लेट्स सी हाउ मच डज इट रीच, एंड कीप इट नॉट वेरी लीनियंट, नॉट वेरी टाइट, समथिंग achievable. Bushra Rahman will get satisfaction only after getting degree, ma'am. Of course, you should get only then. उससे पहले कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो सोने नहीं देते. Have it that way. So
Ma'am, anything specific for allied laws? Specific for allied laws, there's nothing specific as such here. Allied में आप अगर allied की बात करो old course की, तो of course FEMA, SEBI, SECRA and interpretation एक ऐसा चैप्टर है जो जनरली सब छोड़ते हैं, बट वो स्कोरिंग है यार. 4 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें, अगर थोड़े से टेक्निक डेवलप कर लो तो यू कैन रिमेंबर दैट. Sangeeta Goswami, ma'am, I lost my mom last year. Don't have any female at home. But when you motivate, it feels like someone elder is teaching me about positive side of life. You are my favorite and law too. Thank you so much, Sangeeta. And let me tell you, देखो, this is life. Okay. अगर of course it's a big pain to lose your parents, and I know that. Okay, I know that. But you have to understand they never go anywhere. They stay with us. They actually stay with us. And I can say that because I know it. ठीक है. अगर आप लोग नोटिस करोगे ना कभी, I never share these things with my students, but अगर आप नोटिस करो कभी, all my lectures you'll see examples on my dad. पापा ने मेरे को ये बोला, पापा ने मेरे को वो बोला. I have lost my father already, but I know he's with me. He has made me a CA today, and he is going to be with me all my life. वो नहीं छोड़ सकते मेरे को. Similarly, don't worry, your parents never leave you. They're just physically not with you, but their blessings are always with you. Don't worry, just stay positive with it. Shanti Agarwal, Mitali. Sir, best session must needed now after exam cancelled. Thank you all. I think sir मैंने सारे ले लिए. इससे ज्यादा अब questions ही नहीं है किसी के. अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ओके. So sir, I think we're done. मेरे को जो समझाना था, बताना था, मोटिवेट करना था, सब हो गया. बाकी तुम्हें पता है हाउ टू कॉन्टैक्ट मी. और कभी जिस दिन पास हो जाओ ना, उस दिन भूल मत जाना. आई एम वेटिंग टू सी ऑल ऑफ यू समडे. कहीं ना कहीं तो मिलोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुमने मुझे बहुत देखा है, बहुत देखा है अब तो. तो कभी कहीं मिल जाओ तो बताना जरूर कि तुम मुझे जानते हो. आई वुड लव टू मीट ऑल ऑफ यू. साथ में बैठ के कभी चाय पियेंगे विद ऑल माई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सब पास होके आ जाओ, फिर साथ में चाय पियेंगे. Absolutely. It will be very wonderful to see all you people becoming chartered accountants, and that will be the biggest consideration for us. So we are definitely waiting for you to become chartered accountants, and आपके रिजल्ट का हमें बेसब्री से इंतजार है. So right now we are having with us Mayuri Pawar. She will be expressing vote of thanks to Aditi ma'am. Thank you, ma'am, for sparing your valuable time and sharing great knowledge amongst the students. I, on behalf of Satara and Nagpur branch of Vicasa and EIRC Express, deep gratitude towards you. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you, Rivage sir. Thank you, Mayuri ma'am. And thank you, everybody. I am so glad each time I come live. I am so happy to meet you. And I'm soon going to come live on my channel also. Do come and join me there just to help solve all your doubts. खाली ठीक है, so do come. अगर कभी कोई डाउट्स हो तो मेरे को बता दो कि मैम आओ ना लाइव, आपसे बात करनी है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आओ ना लाइव, तब हम लाइव मिलेंगे. ओके, तो तुम बुलाओ और हम आ जाएंगे. Best session. Really motivated. Thank you so much. One question from Shanti ji. Allied law में only past questions और मॉड्यूल से पढ़ाई करें. ए ओनली पास्ट क्वेश्चन तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना चाहिए ना यार. क्या पता नहीं आया वही वाला क्वेश्चन, तो पढ़ाई तो पूरी करो. पास्ट क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस होता है, फर्स्ट स्टडी नहीं होता. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू की लाइन लगी है. साथ में चाय पियेंगे. आई एम अ चाय फैन. आ जाओ कभी पियेंगे. Actually that chai has really broken me. मुझे हेडेक बहुत आया था परसों. एसिडिटी हुई थी. सर वो गलत टाइम पे गलत चाय पी रहे हो. आप सही टाइम पे सही लोगों के साथ सही चाय पियो, सब अच्छा ही होगा. ओह ग्रेट मैम. मैम one thing just to conclude, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये तुम मुझसे पहले भी सुन चुके हो, but this is the most motivational thing. I know I'm repeating it, but let me tell you this. एक तो वो तुम्हें पता ही है. दूसरी चीज, इफ यू थिंक मैम बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लगती है, आई होप यू अंडरस्टैंड. ये तुमने सुन रखा होगा कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है. You are the ones who are supposed to change the history.
दिस इज हिस्टोरिकल टाइम एंड यू सपोज्ड टू चेंज द हिस्ट्री. और सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना. इफ यू डू योर बेस्ट ना, ट्रस्ट मी, कोई नहीं रोक पाएगा यार तुमको. तुम करो तो सही. और लाइफ में ना सैटिस्फाई होना सीखो. मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, नहीं ना तो अच्छा हो रहा है. ये टाइम पे ना सबके साथ इतना बुरा हो रहा है ना, खुश रहना सीखो. ठीक है. सो सर, अप टू यू. It's very really amazing, ma'am. बहुत ही मजा आया. Thank you so much. From which city you are, ma'am? From which city I am? I am born and brought up in Mumbai, but I belong to Mathura, the birthplace of Lord Krishna. Oh. Yes, Mathura ji. Me and Dani sir both are from Mathura actually. But yeah, I am born and brought up everything here only in Mumbai. So this is how I am. Yeah. In allied old course doing past. In allied old course doing past exam questions is enough. किसी भी subject में doing past exam questions is not enough. पहले main content पढ़ो, उसके बाद past exam questions से practice. This is a risk actually. Yes ma'am, looking forward to meet all the faculties. दिल खुश हो गया आज का सेशन देखकर. हाय thank you so much. And yeah, yes. हाँ जी. All the students are requested to stay tuned today evening 4 PM से 4 बजे से we will be having group 2 के सेशंस. वो भी बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं. Mahesh sir will be there, even Dani sir will be there, Durgesh Singh will be there, and Akash sir will be there. So बहुत धमाका होगा. So stay tuned for that session also. And yes, आपकी वजह से बहुत सारे students are very charged up now. They will definitely study. Thank you, Aditi ma'am. Very wonderful. अरे बाप रे. Thank you so much. Thank you so very much, guys. देखो, मेरी बात तुमने सुन ली थी, तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया. That's not enough. मेरे को रिजल्ट्स दिखाना. देखो, मैं तो बताती हूँ. एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में एक फर्क होता है. दोनों में कैश आउटफ्लो होता है, बट एक्सपेंस में वो राइट ऑफ हो जाता है एंड इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स आती है. मेरे लिए माई टाइम इज मनी. ठीक है, तो जो टाइम मैंने आपको दिया मेरे लिए आउटफ्लो है, बट आई एम कंसिडरिंग इट एज इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. लेकिन तुमको लेनी, मुझे रिटर्न्स नहीं चाहिए. तुम्हें पता है ना, लॉ में एक कंसेप्ट होता है बेनिफिशियल ओनर वाला. पता है ना, रजिस्टर्ड ओनर कोई और होता है, बेनिफिट कोई और ले जाता है. आई वांट टू बी इस इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर्ड ओनर एंड यू बी द बेनिफिशियल ओनर. टेक रिटर्न्स आउट ऑफ दिस. Okay, sir. I think I'm done. I'll see you all of you someday live face to face to celebrate your success. Do your best, guys. Don't worry. सब अच्छे से होगा. हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अब कैसे प्लान करें, ढंग से प्लान करो, सब होगा. 4 महीने की लीव मिली है यार. इफ लाइक मैम ऑफिस वाले काम देंगे, थोड़ा काम भी कर दो, ब्रेक भी तो लोगे. जस्ट टेक इट कि मैं कैसे इसको पॉजिटिव बनाऊं, बस, नथिंग एल्स. बराबर. लास्ट में जाते जाते आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू सेंटेंसेस. एक कहावत है कि अगर आप प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे तो आपका वॉर में, जंग में आपका खून कम बहेगा. वन सेकंड आई रिपीट. अगर आप प्रैक्टिस में अगर आप पसीना बहाओगे तो आपकी वॉर में या जंग में खून कम बहेगा. सो सेम केस अप्लाइज टू योर सीए स्टडीज ऑल्सो. एंड जैसे खुशबू मैम ने बोला था, इवन आदित्य मैम हैड रिपीटेड कि अगर आप सीए फाइनल एग्जाम को आप डायरेक्टली आप प्रिपेयर करोगे, एग्जाम पे जाओगे, तो आप डेफिनेटली यू आर प्लानिंग फॉर फेलिंग. सो आपको पहले भी मॉक टेस्ट वगैरह करना जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस करना जरूरी है. एंड आई होप आदित्य मैम विल ऐड मोर टू इट. जैसे द आइडिया इज द मॉक टेस्ट. आई टेल यू मॉक टेस्ट का फंडा क्या होता है. तुम सीधा एग्जाम में जाओ और सीधा एग्जाम को फेस कर. ठीक है, ये तुमने बचपन से सुना होगा, 10th में भी बोला जाता था थोड़े बोर्ड एग्जाम पेपर्स खुद सॉल्व कर ले. ठीक है, मॉक टेस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है, जैसे 10th में हम बोर्ड से पहले प्रैक्टिस कर लेते थे, फिर एग्जाम स्कूल में प्रीलिम्स हो जाते थे. सो इट्स जस्ट दैट बोर्ड सीधा हार्ट अटैक ना दे. सीए फाइनल में जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, दे जस्ट वर्क दैट. वो आपको सीधा सीए फाइनल हार्ट अटैक नहीं देगा. आपने 1-2 बार पेपर सॉल्व कर लिए होंगे. सो यू नो, एनीवेज ये तुम तीसरी बार पेपर लिख रहे हो इन योर फर्स्ट.
ना यू गेट यूज टू इट, तुम्हें पता चल जाता है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा ये छूट जा रहा है, मेरा ऐसे नहीं हो पा रहा है, मेरे को क्वेश्चंस पढ़ने में समझ नहीं आते, इंस्टेंट कम टाइम में समझ नहीं आते. इट्स एज गुड एज ड्रिल ऑफ योर सीए फाइनल पेपर. तो इसलिए इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू इफ यू सॉल्व द मॉक टेस्ट पेपर्स. बट माय वन सजेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट इज पढ़ के सॉल्व करो, ईमानदारी से सॉल्व करो तो करो. तुम सोचो कि अरे कौन देख रहा है, छोड़ना मैं 3 घंटे या 4 घंटे में लिख दूं, कंप्लीट तो करूं. दैट्स अनफेयर एंड दैट्स अनफेयर टू यू, किसी और के लिए अनफेयर नहीं है. ठीक है, सो फेयर रहो, अपने आप को टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट पेपर दो. पहले सारी पढ़ाई खत्म करो और फिर मॉक टेस्ट पेपर. मतलब मॉक टेस्ट से पहले ऑब्वियसली मॉक टेस्ट से क्या होता है ना, यू गेट अ शेड्यूल आल्सो कि मैं इससे पहले ही खत्म हो जाएगा मेरा पढ़ के. सो जस्ट डू इट ऑनेस्टली फर्स्ट. Yes. Thanks a lot, ma'am. थैंक यू सो मच. Bye bye. बाय बाय. Thank you once again. It was very enjoyable. मैडम मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया लेकिन मेरी एनर्जी बहुत ही हाई हो गई है. अरे थैंक यू सो मच. आपकी सेशन इज वेरी वंडरफुल. मतलब अभी अभी एक तरह की चाय भी पी है ना, मोटिवेशन की चाय पी है सबने. वाओ, ग्रेट. चलो, थैंक यू सो मच गाइस. All the very best. Do your best. God will do the rest. Okay? All the very best, guys. Okay, bye bye. Bye bye.